ન્યૂઝ ચેનલ ઓફ વડોદરા। નવા ભારત આગામી દાયકાઓ માટે નવી તકો અને આર્થિક વૃદ્ધિના વિષય પર અકોટા સર સયાજીનગર ગૃહ ખાતે પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન યોજાયું હતું। ભાજપ પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટના માર્ગદર્શનથી વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેર પ્રમુખ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહની અધ્યક્ષતામાં વિવિધ સેલ દ્વારા શહેરના સર સયાજીનગર ગૃહ અકોટા ખાતે નવ ભારત આગામી દાયકા માટે નવી તકો અને આર્થિક વૃદ્ધિના વિષય પર પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય કક્ષાના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટીના મંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરજી ઉપસ્થિત રહી પ્રબુદ્ધ નાગરિકોને સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિવિધ ક્ષેત્રોના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નવા ભારત આગામી દાયકા માટે નવી તકો અને આર્થિક વૃદ્ધિના વિષય પર આયોજિત પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલનમાં રાજીવ ચંદ્રશેખરજી ઉપસ્થિત રહીને પ્રબુદ્ધ નાગરિકોને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે નવું ભારત વિશ્વના દેશોમાં અગ્રેસર બની રહ્યું છે। આવનારા વર્ષોમાં ભારતીય યુવાનો માટે કંપનીઓમાં તકો ઊભી થશે। સ્કિલના માધ્યમથી યુવાનોને તક મળશે। યુવાનોમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ જેટલું વધુ હશે ત્યારે આવનારા સમયમાં આ કૌશલ્યના આધારે યુવાનો જે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં એક કૌશલ્ય ધરાવતા હશે તેઓ માટે ભવિષ્યમાં ઉજળી તકો ઊભી થશે તેમ જણાવ્યું હતું। પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહેલા કેન્દ્રીય મંત્રી યુવાનો સાથે તથા આમંત્રિત મહેમાનો સાથે પણ વાર્તાલાપ કરતા હતા અને મહેમાનો દ્વારા કરેલા પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં વડોદરા શહેર પ્રભારી ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખ, મેયર કેયુરભાઈ રોકડિયા, ધારાસભ્ય જીતેન્દ્ર સુખડિયા, યોગેશભાઈ પટેલ, સીમાબેન મોહિલે તથા ડોક્ટર, વકીલ, એન્જિનિયર, સીએ, વેપારીઓ તથા નામાંકિત શહેરના અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન ડોક્ટર શીતલ મિશ્રે તથા વિવિધ સેલના હોદ્દેદારો દ્વારા કરાયું હતું। After ICAI will be Lagu Udyog Bharti. I request Prakash Subbe, Sandeep Shah and team of LUB to please come on stage to welcome the chief guest. आपकी कोणी मारो सॉरी हमें काम करे हमें काम करिए भाई। After VCCI is Indian Chartered Accountants Institute, Kerala Samaj. Thank you. I am sure he is going to take a lot of fond memories from here. Okay. Thank you. गांधीनगर से पहुंचा हूं वडोदरा। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक सपना था वंदे भारत ट्रेन में, उसमें आया हूं और मुझे देखने को मिला कि उनका सपना कैसे साकार हो रहा है। और आज वडोदरा में एक इंटेलेक्चुअल मीट में मैं भाग ले रहा हूं, जहां पर मैं एक तरह से प्रस्तुत करूंगा कि भारत पिछले सालों में कितने आगे बढ़ गए हैं और हमारे आने वाले दशक को जो प्रधानमंत्री मोदी जी इंडियाज़ टेकेड कहते हैं, उसका मतलब उसके इस इंडिया के दशक में हमारे युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस कंपनीज़ के लिए कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ और नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। और ये भी मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पेश करूँगा कि जो लोग गुजरात में दिल्ली से आए हैं यहाँ पे राजनीति करने के लिए, कुछ वो सोच रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उनके आइडियोलॉजी के कंपैरिजन में हमने जो देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक नया भारत का विज़न खड़ा करके मेहनत से और परिश्रम से हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं देश में, गुजरात में, उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। और जो कल गांधीनगर में और अहमदाबाद में मैंने भारत सरकार का सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन स्कीम के बारे में जो लॉन्च हुआ है, रोड शो हुआ है कल, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाले दशक इंडिया का टेकेड होगा और मैं आज ये भी कहने आया हूँ कि धोलेरा में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है फैब्रिकेशन का, सेमीकंडक्टर का, उससे गुजरात में भी एक गुजरात का टेकेड आएगा आने वाले सालों में।
और हमारे युवाओं को, हमारे युवा साथी छात्र लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर गुजरात में इस टेक्नोलॉजी के डोमेन में भी आने वाले हैं आने वाले सालों में। सर यूनिक देखिए, आज मैं कुछ और बात करने के लिए आया हूँ या आप कुछ और गुजरात पूछें? की बात करते हैं। सर आम आदमी पार्टी कितनी टिक पाएगी गुजरात में? देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारा काम, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पिछले 6-8 साल से उन्होंने जो काम किया है और देश में और गुजरात में जो बदलाव आया है उसके बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे लोगों के सामने। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2.5 साल से जो हम कोविड के महामारी के दौरान कौन से पार्टी ने लोगों के भलाई के लिए, लोगों के मदद के लिए काम किया है, ये भी लोग जान ले और वो हम लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को भड़काया है, लोगों को घर वापस भगाया है और आज शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए कोई भी कुछ कहते हैं, उसको हम एक्सपोज करेंगे ज़रूर। ये देखिए, इलेक्शन एक हमारे डेमोक्रेसी में एक अपॉर्चुनिटी है अलग अलग लोगों को हमारे वोटर्स के सामने उनके विजन और हमारे भविष्य के बारे में आइडियाज़ प्रस्तुत करने के लिए। जो लोग हमारे साथ compete करना चाहते हैं इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, वो करें, लेकिन जो एक तरह से घिसी पिटी राजनीति करना चाहते हैं, जो 40-50 सालों से कांग्रेस करती आ रही है, और मैंने कहा भी है कि आम आदमी पार्टी एक नया कांग्रेस का एक नया रूप है और उनके आइडियोलॉजी और उनके गवर्नेंस और उनके करप्शन के पॉलिटिक्स काफ़ी देर पहले फेल हो चुके हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा उनके बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद देखिए, ये दुखद बात है और मैं सहानुभूति देता हूँ लोग जो पैसेंजर्स थे और उनके फैमिलीज़ को। सर, आम आदमी पार्टी को भाजपा का बी टीम बताया जाता है, क्या कहोगे इसके बारे में? ये वो दो तय कर ले कि किसके बी टीम कौन, किसके बी टीम है। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दे देगा।